Chapter 9, Animals and their Young Ones. Student, before starting the chapter, first of all, we will discuss hard words of chapter 9. First hard word is reproduction. reproduction. Reproduction means ability to produce more of their own kind. मीन्स जैसे काऊ वर्थ देती है काफ को, कैट जो है वर्थ देती है किटन को, डॉग जो है बर्थ देता है पपीज़ को, हैन जो है अपनी ही तरह के बेबी बर्ड को प्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, जिसको हम चिक कहते हैं. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सेकेंड हार्ड वर्ड इज लिजर्ड. LIZARD. Lizard means छिपकली. Third is crocodile. 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 Crocodile means मगरमच्छ. Lizard और crocodile दोनों ही एग लेइंग एनिमल्स हैं. ये एग्स देते हैं और एग्स जब हैच होता है, फूटता है, तो उनमें से उनके क्या निकलते हैं? बेबी निकलते हैं. ओके, तो लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल बोथ आर एग लेइंग एनिमल्स. Next hard word is eggshell. 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 Eggshell means outer layer of egg is called eggshell. Next hard word is albumen. 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 Albumen is also called egg white. Now next is yolk. 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 येलो इनर पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड योक. एग के अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको हम योक कहते हैं. नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज एम्ब्रियो. EMBRYO. एम्ब्रियो. योक कंटेन एम्ब्रियो. योक के अंदर ही क्या होता है? एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो का मीनिंग होता है ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल. Life cycle means various stages of development from an embryo to mature adult. Embryo से लेकर बड़े होने तक जो भी जितनी भी स्टेजेस आती हैं बेबी के ग्रो होने के लिए, उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं. नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज हैचिंग. HATCHING. हैचिंग मीन्स एग का ब्रेक होना, टूटना. Hatching means the baby bird break open the eggshell and come out. It is called hatching. Next is spawns. SPAWNS. Spawns means group of frogs egg. बहुत सारे frogs के eggs को हम क्या कहते हैं? spawns. Next is tadpole. TADPOLE. Young one of frog is called tadpole. Next one is metamorphosis. 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 Metamorphosis means a complete changes from young stage to adult stage. young stage से लेकर adult stage तक जितनी भी stages आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? metamorphosis. Next is shedding. SHEDDING. Shedding means गिरा देना. Next is molting. MOULTING. Molting. Molting means process of shedding old skin. कुछ animals जो होते हैं अपने old skin को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं और new skin आना start हो जाती है. Okay, तो what do you mean by molting? Process of shedding the old skin. Next one is mammals. 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 Mammals means they produce their young ones and feed them with their own milk. For example, cow, buffalo, goat, sheep. These are the example of mammals. Next one is cuticle. CUTICLE. Cuticle means outer layer of skin. Next hard word is whale. 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 Next one is dolphin. 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 Whale and dolphin are also mammals. They are found in water. Next hard word is young ones. YOUNGONES. Young ones means babies.
Students, read and learn these hard words and write in Fear Not book. Now I am going to explain chapter 9, Animals and their young ones. Animals and their young ones. Young ones means babies. Student, in this chapter we will study about egg laying animals. Second is life cycle of egg laying animals. Third one is animals that give birth to young ones या babies. Fourth one is animals look after their young ones. Now number the stages given below in their correct order to show the life cycle of a hen in order. Student, tell me, young one of hen is called, yes, chick, yes, or young one of cat, kitten, young one of cow is called calf. Now number the stages given below in their correct order to show the life cycle of hen in order. Student, look at this picture. First stage is a egg. Then second stage is mother hen give the barmouth of eggs. Mother hen warms the eggs. hen जो है eggs को barmouth देती है. Okay. Third stage is baby chick hatches out, means baby bird break open the eggshell and come out. It is a third stage. And fourth stage is chicks grows up. Okay. The ability to produce more of their own kind is called reproduction. लिविंग थिंग्स में एक स्पेशल फीचर होता है, क्वालिटी होता है, वो अपने ही तरह के बेबीज़ को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज लेइंग एग्स, सेकेंड मेथड इज गिविंग बर्थ टू यंग वंस. एनिमल्स जो है टू मेथड से प्रोड्यूस होते हैं. तो फर्स्ट मेथड वर्ड्स जो हैं एग देते हैं और एग के बाद बेबी बर्ड जो है एग शेल को ब्रेक करके वो बाहर आता है. और सेकेंड इज सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज. तो दीज आर द टू मेथड्स. ओके, कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स, लेइंग एग्स एंड गिविंग बर्थ टू यंग वंस. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज एग लेइंग एनिमल्स. Many animals reproduce by laying eggs. The eggs are either kept in a warm place or the parent animal sits on them to keep the eggs warm. Once the eggs mature, the young ones hatch out. Animals that lay eggs include birds, frog, fish, turtle, lizard, crocodile, snake, cockroach, butterfly, bee, mosquito and grasshopper. Many animals reproduce by laying eggs. बहुत सारे animals जो हैं egg देते हैं. For example, birds, frog, fish. frog और fish जो है water पे eggs देते हैं. turtle, lizard, crocodile ये भी egg laying animals हैं. snake also, कॉकरोच, बटरफ्लाई, बी, मॉस्किटो ये भी क्या है, एग लेइंग एनिमल्स. और ग्रास होपर आल्सो. द एग्स आर आइदर केप्ट इन वार्म प्लेस और द पेरेंट एनिमल सिट्स ऑन देम टू कीप द एग्स वार्म. आपने हैन को देखा ही होगा. हैन क्या करती है, वार्म्स द एग, बारमत देती है एग्स को. वर्ड्स भी क्या करते हैं, अपने एग्स को क्या करते हैं, बारमत देते हैं. बारमत क्यों देते हैं, वंस द एग्स मैच्योर. बारमत के कारण ही जो अंदर बेबी डेवलप होता है वो उसको हेल्प मिलती है बारमत से, वो जल्दी ही डेवलप होता है. वंस द एग्स मैच्योर मीन्स एग के अंदर जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, एग शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है. एनिमल्स दैट ले एग्स इंक्लूड बर्ड्स, फ्रॉग, फिश,
turtle, lizard, crocodile, snake, cockroach, butterfly, bee, mosquito and grasshopper. Student, look at fact 5. The habit of some animals to sit on their eggs to keep the eggs warm is called incubation. मीन्स वर्ड्स क्या करते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं, ओके, एग्स को वार्मथ देने के लिए. द हैबिट ऑफ सम एनिमल्स टू सिट ऑन देयर एग्स टू कीप द एग्स वार्म इज कॉल्ड इनक्यूबेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन. सिटिंग द एनिमल्स ऑन देयर एग्स टू कीप द वार्मथ. Now let us learn more about how words reproduce. Next topic is words. All words reproduce by laying eggs. Most words build nest on trees to lay their eggs and to raise their young ones. Maximum words जो हैं eggs देते हैं nest में, और उसके बाद यंग वन जो है फुली डेवलप हो जाता है एग के अंदर और उसको ब्रेक करके वो बाहर आ जाता है. ऑल वर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए वर्ड्स एग. एन एग हैज़ अ थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल. एग शेल मीन्स thin hard outer covering of the egg is called egg shell. जो बाहर की कवरिंग आपको दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, egg shell. Within the egg shell is a white jelly like substance called the albumen. एग के अंदर जो लिक्विड वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, पानी की तरह होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, albumen. ALVUMEN, albumen. और albumen is also called egg white, which is rich in proteins. The yellow inner part of the egg is the yolk. एग के अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, yolk. And it is rich in fats, vitamins एंड मिनरल्स. और योग में क्या क्या होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. द योग कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी और द एम्ब्रियो. योग क्या कंटेन करता है, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का मीनिंग होता है ग्रोइंग बेबी, और ग्रोइंग बेबी को फूड किससे मिलता है, योग से. द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए चिक. एम्ब्रियो जो है किसमें डेवलप हो जाता है, चिक में. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. इट इज ए पार्ट्स ऑफ एन एग शोइंग. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज एग शेल, आउटर लेयर. आउटर थिन लेयर इज कॉल्ड एग शेल. सेकेंड पार्ट इज एग व्हाइट. एग व्हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड albumen. Liquid jelly like substance is called albumen. Third part is yolk. The yellow inner part of the egg is called yolk, or yolk contain embryo. Now within the egg, the embryo goes through various stages of development before the egg hatches and the chick come out. Embryo जो है वेरियस स्टेजेस से होकर फिर वो किस में चेंज हो जाता है, चिक में. और चिक जब फुली डेवलप हो जाता है एग के अंदर तो क्या करता है, चिक ब्रेक ओपन द एग शेल एंड कम आउट. द चिक देन ग्रोज इनटू एन अडल्ट. और चिक जो है धीरे धीरे ग्रो होके क्या बन जाता है, अडल्ट hen या कॉक. Now various stages of development from an embryo to a mature adult is called the life cycle of animal. It is your defined life cycle. What do you mean by life cycle? एम्ब्रियो जो है बहुत सारी स्टेजेस से होकर फिर क्या बनता है, वो अडल्ट. ओके, वेरियस स्टेजेस में जो भी चेंजेस आती हैं, जो भी स्टेजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल. नाउ स्टूडेंट अगेन टेल मी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ चिकन्स एग या व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एग. फर्स्ट पार्ट इज egg shell, the thin outer
covering of the egg is called eggshell. Second part is, tell me, albumen. Albumen is also called egg white, or it is rich in proteins. And third part is yolk. Yellow inner part of the egg is called yolk, or it contain embryo, or embryo means growing baby inside egg. Now next topic on page number 97, life cycle of egg laying animals. Let us learn about the life cycle of some egg laying animals. So first life cycle we discuss here, hen. Look at this picture. Mother hen lays eggs in her nest. hen जो है नेस्ट में अपना एग्स देती है. ओके, मदर hen lays eggs in her nest and sits on them to keep them warm. मदर hen क्या करती है, एग्स को वार्म देती है. मदर hen warms the egg. Now this helps the embryo to develop better and faster. मदर hen वार्म्स द एग्स. मदर hen जो है एग्स को वार्मत देती है ताकि चिक जो है एग के अंदर फुली डेवलप हो जाए. वंस द एम्ब्रियो विद इन द एग हैज़ डेवलप्ड इनटू ए चिक, द चिक ब्रेक्स द शेल टू कम आउट. एक बार जब चिक जो है फुली डेवलप जब हो जाता है एग के अंदर, तो चिक क्या करता है, एग शेल को ब्रेक करता है और बाहर आ जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड हैचिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग. हैचिंग मीन्स द बेबी बर्ड ब्रेक ओपन द एग शेल एंड कम आउट. इट इज कॉल्ड हैचिंग. हैचिंग का मीनिंग क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना. द यंग चिक देन ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट hen. तब बेबी चिक जो है धीरे धीरे ग्रो होके किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट hen. ओके, अडल्ट hen. स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर. इट इज ए लाइफ साइकिल ऑफ ए hen. फर्स्ट स्टेज जो है एग्स है. hen जो है नेस्ट में एग्स देती है. देन आफ्टर मदर hen वार्म्स द एग्स. ओके, मदर hen जो है सिट्स ऑन द एग्स एंड गिव देम वार्मथ. क्यों वार्मथ देती है, कि बेबी जो है फुली डेवलप हो जाए. थर्ड स्टेज में जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है एग के अंदर, तो ये एग शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है. ओके, बेबी चिक हैचेस आउट. देन चिक ग्रोज अप. और फिर चिक जो है धीरे धीरे ग्रो होके किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट hen. ओके, अडल्ट hen. इट इज ए लाइफ साइकिल ऑफ ए hen. Student, see the picture carefully and read 2 times. What are the life cycle of a hen? Now, next topic is frog. Now we will discuss life cycle of frog. A frog lays eggs in water in large clusters called spawns. Spawns का means होता है group of frogs eggs. ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एग, बहुत सारे एग्स जो होते हैं फ्रॉग्स के, उसको हम क्या कहते हैं, स्पान्स. SPAWNS, स्पान्स. और फ्रॉग्स जो हैं एग्स किस में देते हैं, वाटर में. और उनके जो एग होते हैं वो जेली लाइक होते हैं. ओके, नाउ ए टैडपोल हैचेस आउट ऑफ द एग विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग. और ईच एग ऑफ फ्रॉग हैचेस इनटू ए टैडपोल. फ्रॉग का जब एग हैच होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, तो उसमें क्या कम आउट होता है, टैडपोल. टैडपोल जो है इट लुक लाइक ए फिश. इट लिव ओनली इन वाटर. पानी में ही रहता है, फिश की तरह होता है. फिन्स से ये ब्रीथ करता है. ओके, ए टैडपोल हैचेस आउट ऑफ द एग विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉग. इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस थ्रू ए प्रोसेस known as metamorphosis before it become an adult. Metamorphosis means a complete changes from an young stage to adult stage. Tadpole धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है. As the tadpole grows, it develop 2 back legs, 2 front legs and pair of lungs. जैसे जैसे टेडपोल ग्रो करता है तो उसके पीछे की 2 लेग्स और आगे की 2 लेग्स और लंग्स जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स आपने फ्रॉग को लैंड के ऊपर भी देखा है, पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं.
जब वो लैंड के ऊपर होते हैं तो वो ब्रीथ किससे करते हैं, लंग्स के थ्रू, और जब पानी में होते हैं तो किससे ब्रीथ करते हैं, मॉइस्ट स्किन से। ओके तो जो भी चेंजेस आती हैं, टेडपोल पहले पानी में रहता है, फिन से ब्रीथ करता है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो फिर उसमें क्या ग्रो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, 2 back legs, 2 front legs and a pair of lungs. It is called metamorphosis. A complete change from a young form to an adult form is called metamorphosis. Student, look at this picture. First stage is eggs. Most frogs lay eggs in water as spawns. Group of frogs eggs is called spawn. बहुत सारे एग्स जो होते हैं फ्रॉग्स के, उसको हम क्या कहते हैं, स्पान। सेकंड इज ईच एग हैचेज इनटू ए टेडपोल। जब एग हैच होते हैं, टूटते हैं, तो उनमें से क्या निकलता है, टेडपोल। टेडपोल लुक लाइक ए फिश, इट live in water and breathe with the help of fins. Now after, as the tadpole grows, it develop 2 back legs, 2 front legs and pair of lungs. धीरे धीरे टेडपोल ग्रो होता है, उसकी पीछे की टांगे, आगे की टांगे और लंग्स जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली इट्स टेल रिड्यूसेस इन साइज, और जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो भी उसका साइज भी कम होते जा रहा होता है। एंड फाइनली टेडपोल बिकम्स एन अडल्ट फ्रॉग। ओके सो मैनी चेंजेस जो आ रही हैं अडल्ट फ्रॉग बनने के लिए, यंग स्टेज से होकर, टेडपोल क्या है, यंग वन ऑफ ए फ्रॉग, यंग वन से लेकर अडल्ट फ्रॉग तक जो भी चेंजेस आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो इट इज ए लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। स्टूडेंट्स, रीड द chapter from textbook on page number 95 to 97 and write the hard words in your notebook and learn spellings.